Types of unit cell based on the position of particles, and we know that based on the position of particles, unit cells are of two types: primitive, which are also known as simple unit cell, and non-primitive, which are also known as centered unit cell. Now, in the primitive or simple unit cell, atoms are present only at the corners. We will deal with the cubic system. Atoms are present only at the corners. And in non-primitive, in addition to atoms present at the corners, they are also present at some other positions. Based on some other positions, they are further of three types. They may be FCC, face-centered cubic unit cell. In addition to the particles at the corners, one particle is present at the center of each face. As you know, cube has 6 faces. So one particle will be center of each face. This type of unit cell is known as FCC. Then we have BCC, body centered cubic unit cell. In addition to corner पे तो है ही हैं. In FCC भी corners पे तो थे ही थे, but in addition to the corners, center of each face. Similarly, in addition to the corner, one atom will be present at the body center. ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम दिखाने के लिए ऐसे लाइंस बना देते हैं, ये जो लाइंस हैं, ताकि हमें ज्योमेट्री समझ में आ जाए, बट एक्चुअल में ऐसे कोई लाइंस प्रेजेंट नहीं होते. मैंने कुछ पिक्स डाउनलोड की हैं, मैं अभी आपको शो करती हूँ. एंड थर्ड वन इज ECC. ECC full form is end centered cubic unit cell. Now what happens in ECC? Particles are present at the corner, and in addition to corner, you can choose any two opposite faces. Like choose up, down face, front, back, or side. Particles will be present at the center of any two opposite faces, in addition to the particles being present at the corners. So this is a classification of unit cell based on what? Based on position of particles. Now what are particles? ध्यान में रखना है पार्टिकल्स क्या हैं. पार्टिकल एटम हो सकते हैं. वो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, मान लो हम कॉपर मेटल को स्टडी कर रहे हैं, उसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो उसमें कॉपर के एटम होंगे. NaCl को देख रहे हो तो NaCl में आयंस होंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. किसी मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हो, वाटर को स्टडी कर रहे हो, उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स होंगे. तो कलेक्टिवली हमने वर्ड क्या रख लिया? पार्टिकल्स. ठीक है. तो मैंने फिर जैसे आपको बताया ही है कि एक्चुअल में टच करते होते हैं. कैसे? ऐसे नहीं है सारे एक दूसरे को कैसे टच करते हैं. FCC में डिफरेंट टच करेंगे, BCC में डिफरेंट. अभी आपको क्लियर हो जाएगा. बात यह है कि ऐसे कोई लाइंस वगैरह इनमें नहीं प्रेजेंट हैं. ठीक है. अगले टॉपिक में चलते हैं, तो आपको मैं पिक्स भी दिखाऊंगी. ये सारा तो रिवीजन ही है. एंड इन द लास्ट लेक्चर हमने वो ब्रेवियस लैटिस भी पढ़ा था, 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे. वो आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी CT और HMT से. यू कैन रिमेंबर द 7 crystal system with their dimensions. 6 dimensions are there: 3 edge lengths ABC and 3 angles alpha, beta, gamma. If we vary these 6 parameters, we get 7 type of crystal system. And example of each crystal system, it is cubic, tetragonal, orthorhombic, rhombohedral, hexagonal, monoclinic, triclinic. And example of each system. Then we also discussed what is the meaning of 14 Bravais lattice. How there are 14 Bravais lattices are there. Now moving ahead, our next topic is calculation of effective number of
Calculation of effective number of particles per unit cell. Effective number of particles per unit cell, it is designated by capital Z. Now, what is the meaning of this topic? Calculation of effective number of particles per unit cell. Let us start from the simple unit cell. सिंपल यूनिट सेल. चलो पहले इसका पिक देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं. वेट अ मिनट. कोई डाउट हुआ बेटा तो मुझसे चैट से पूछ लेना, ठीक है? तो स्क्रीन दिख रहा है आपको? ये वाला देखो जरा, मुझे चैट में लिख के बताओ स्क्रीन शो हो रही है ना? से यस और नो. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है या स्क्रीन दिख रही है? ओके. अब इसे देखो बेटा, सिंपल यूनिट सेल है, वो हम शो ऐसे करते हैं, ठीक है? जैसे आपको मैंने ऐसे ही बना के दिखाया, बट एक्चुअल में ये जो बी वाला बना हुआ है ऐसे होता है ये. तो हम ये बीच में लाइंस क्यों दिखाते हैं? ताकि उसकी ज्योमेट्री हमें इमेजिन हो जाए कि हम ऐसे ऐसे उसे बना लेते हैं सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करके, बट एक्चुअल में जो बी वाला डायग्राम है वैसे वो एग्जिस्ट करता है. आई बात समझ में? अब हम करने क्या जा रहे हैं? अब हमारा जो है एम क्या है, जो हमने हेडिंग लिखी है, हमने क्या हेडिंग लिखी थी? इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल. अब आप बोलोगे मैम एक यूनिट सेल में हमें 8 पार्टिकल्स दिख रहे हैं, 8 एटम की बात कर रहे हैं, मान लो 8 आंसर आना चाहिए, बट आंसर 8 नहीं है, आंसर 1 पार्टिकल है. कैसे? अब ये सी वाला डायग्राम देखो, ये वाला पेन मैं यहाँ पे नहीं चला पाऊंगी, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ तो आप लोग मेरे साथ साथ समझते जाओ. सी वाला देखो, आपको दिख रहा है कि हर एक एटम का एक्चुअल में बेटा 1/8 पोर्शन हर एक एटम का एक यूनिट सेल में होता है. ये कैसे पता चला? मैं अभी वापस बोर्ड पे आती हूँ और मैं आपको बना के दिखाती हूँ. अब देखते हैं बेटा, सिंपल यूनिट सेल क्या होता है? एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स. आपको भी ये तो पता चल गया कि एक्चुअल में ये बीच में कोई लाइंस लुइंस नहीं है, ये हम समझने के लिए बना लेते हैं, ठीक है? और कभी भी हम ये एक यूनिट सेल अपनी इजी करने के लिए दिखाते हैं. हमेशा स्ट्रक्चर कोई भी होगा वो लैटिस में ही होगा. लैटिस मीन्स ऐसा नहीं है कि ये एक ही यूनिट सेल है. जैसे पहले दिन मैंने आपको डायग्राम बनाई थी, इधर भी यूनिट सेल है, इसके पीछे भी है, यहाँ पे भी है, इनके ऊपर भी यूनिट सेल्स हैं, ठीक है? तो तुम इमेजिन करके देखो, जो एक एटम होगा ना वो एक्चुअल में 8 यूनिट सेल्स शेयर करेंगे. कैसे? मैं एक बड़ी डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ, देखना तुमको समझ आ रही है. Every corner atom will be shared equally by 8 unit cells. So मैंने लैटिस का कुछ पोर्शन में बनाऊंगी. फ्रॉम दिस डायग्राम the point will be much clear to you. Now see. अच्छा, एक लाइन ये रह गया. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप इसमें से 8 स्मॉल बॉक्सेस इमेजिन कर पा रहे हो? 8 स्मॉल बॉक्सेस इमेजिन कर पा रहे हो? 8 यूनिट सेल्स हैं एक्चुअली इसमें. थोड़ा देखो, इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी. अब मैं ये छोटे वाला इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. जो मैं डार्क करूँगी उस टाइप के 8 प्रेजेंट होंगे. ये पता लगा बेटा? बताना ज़रा.
अब ये इसके 8 कॉर्नर्स हैं, ये दिख रहा है तुमको? जैसे ये एक कॉर्नर है, ये दूसरा है, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, दिस इज द सिचुएशन। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो जिसको मैं ओपेक कर रही हूँ, ये वाला देखो एटम, तुम इमेजिन करो जरा, ये वाला एटम बेटा अकेले इस ब्लैक वाले का कॉर्नर नहीं है, इसके साथ वाले का भी कॉर्नर बन रहा है, और उसके पीछे वाले का भी ये कॉर्नर बन रहा है, और ये जो मैंने ब्लैक किया उसके पीछे वाले का भी कॉर्नर बन रहा है। इन चारों का कॉर्नर तो तुमको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये ऊपर वाले चारों का भी कॉर्नर बन रहा है, जरा ध्यान से इमेजिन करो। लेट अस यूज सम अदर कलर टू शो द अबव वन। ये वाला देखो, जो मैं ब्लू से बना रही हूँ, उसका कॉर्नर नहीं बनेगा ये ब्लैक वाला एटम। तो क्या तुमको ये समझ आ रहा है कि ये जो ब्लैक वाला हमने एटम दिखाया था, इट इज एक्चुअली बीइंग शेयर्ड इक्वली बाय 8 यूनिट सेल्स। बताओ, कितनी बात पता लगी कि ये जो एटम है ये 8 यूनिट सेल्स शेयर कर रहे हैं। तो एक यूनिट सेल को इस एटम का कितना पार्ट मिलेगा? सिर्फ 1/8। इस एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट एक्चुअल में एक यूनिट सेल का होता है। सिमिलरली ये वाला जो एटम है, इसका भी एक्चुअल में 1/8 पोर्शन ही इसका खुद का है, फर्स्ट वाले का जो ब्लैक है, इसका भी 1/8 पोर्शन ही है इसका। सिमिलरली इसका भी 1/8 पोर्शन है, इसका भी 1/8 पोर्शन है, इसका भी 1/8 पोर्शन है, इसका भी 1/8 पोर्शन है। तो एक एटम का एक्चुअल पोर्शन 1/8 है। ऐसे कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं। तो एक्चुअल में एटम 8 नहीं है एक यूनिट सेल में, एक्चुअल में एटम एक एटम है एक यूनिट सेल में। एक बार दोबारा डायग्राम पे चलते हैं। अब ये देखो अब ये जो सी वाली डायग्राम है, इस पे देखो, तुमको इसने एक तरीके के कट करके 1/8 पोर्शन दिखाया। अब 1/8 पोर्शन को इकट्ठा कर दें तो एक एटम बनेगा। और ये वाला डायग्राम देखो, ये जो मैंने बनाया था, इसने कॉर्नर वाला ब्लू कर दिया और उसको 8 यूनिट सेल्स में इक्वल शेयरिंग दिखाई है। बताओ बेटा, समझ में आया? नहीं आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन अगेन। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम जेड पढ़ रहे हैं। जेड होता क्या है, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ एटम्स और यू कैन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। कि वी हैव 1 यूनिट सेल, बट एक्चुअल में 1 यूनिट सेल नहीं होता, वो समझने के लिए बनाया जाता है। उस एक यूनिट सेल में देखने में तो कोई पूछे कितने एटम्स हैं, तुम बताओगे 8, बट 8 एटम्स नहीं है उसमें, क्योंकि हमेशा वो आगे पीछे चलता जाता है। हर एक एटम का 1/8 पोर्शन उसका खुद का है। ऐसे कितने एटम्स हैं? ऐसे 8 हैं। तो एक्चुअल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल सिंपल के केस में 1 है। आ गई ना बात ये समझ में अच्छे से? ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं तुमको समझा देती हूँ, बाकी मैं नोट्स की तुमको फोटो भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है? समझने पे पूरा फोकस रहो। सो हमारी z की वैल्यू 1 आती है। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का बेस है ये। क्या है z क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नाउ z in is 1 in case of simple unit cell, or you can say if it is primitive unit cell. Now similarly we can find effective number of atoms in other unit cells also. Let us talk about FCC. Now I am going to draw FCC 1 unit cell, but be careful that it is not 1 unit cell, actually there will be a lattice. Now what is the FCC? Face centered cubic unit cell. Now let's see. देखने में तो लगता है कि इसमें 14 एटम्स हैं, है ना? क्यों 14 लिखा मैंने? बट 14 है नहीं वैसे, मतलब रैंडमली किसी को लगेगा जिसको नहीं पता। 8 कॉर्नर्स पे और हर एक फेस पे है तो 6 हो गया, बट ये सिचुएशन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉर्नर वाले का सिर्फ 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो कॉर्नर्स वाले एटम्स के कारण 1/8 × 8
plus. Now can you imagine this, that this particle, or you can say this atom, is shared by how many unit cells if it is present in a lattice? इसके साथ में बेटा जो यूनिट सेल होगा उसका भी ये फेस का पार्ट नहीं बनेगा और नहीं किसी का बनेगा। तो जो एटम तुम्हारा फेस पे प्रेजेंट होता है ये किसका बनेगा? ये ऊपर वाले यूनिट सेल का पार्ट बनेगा। ये वाला ये इसके साथ वाले का बनेगा, दिस वन नीचे वाले का, फ्रंट वाला इससे आगे जो है, बैक वाला उससे पीछे जो है। तो जो फेस पे तुम्हारा एटम है वो इस यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन हाफ है उसका, कि आधा वो इस यूनिट सेल के, आधा वो साथ वाले यूनिट सेल का होगा। ऐसे कितने एटम्स हैं तुम्हारे पास? 6 हैं। तो एक्चुअल में कितने एटम्स हुए? 4 एटम्स एक्चुअल में एफसीसी में है। मतलब एक्चुअल में 4 एटम्स से एक यूनिट सेल बनता है एफसीसी का। मैं पिक दिखाती हूँ। एफसीसी, ये देखो, ये इसने ये देखो फिगर, 1 मिनट, लेट मी सी इफ आई कैन राइट। ये देखो आधा ये जो फेस पे है, दोनों 2 यूनिट सेल शेयर करेंगे, कोई भी फेस ले सकते हो। तो इस एटम का कितना पोर्शन एक यूनिट सेल का? 1/2। तो एक्चुअल सिचुएशन ये है, कोई लाइंस प्रेजेंट नहीं होते, एक्चुअल में ऐसे हैं। तुम देख पा रहे हो ये जो बीच वाला ये फेस का है, ये फेस का है, सिमिलरली ये, बाकी तो ऐसे तुम इमेजिन कर सकते हो। और सी इसमें देखो ये आधा कट किया हुआ है, सेंटर में दिख रहा है, ये 1/8 पोर्शन है, ये जो यहाँ पे मैंने डॉट लगाया ये हाफ कट है। मतलब एक्चुअली हम पर यूनिट सेल देख रहे हैं ना, इसीलिए हमने उसको हाफ ले लिया, इसीलिए हमने 1/8 ले लिया। आई बेटा बात समझ में? Just reply me quickly. So remember in FCC there is Z is 4, but be careful what is Z. Z is the कि 1 यूनिट सेल में, FCC की बात कर रहे हैं तो एक यूनिट सेल में एक्चुअल में 4 एटम्स हैं सिर्फ। बताओ बेटा, आप रिप्लाई करो या माइक ऑन कर लो या क्विकली चैट से बता दिया करो। थर्ड इज BCC. Now try to do yourself that in BCC how many atoms will be there per unit cell? सोच के बताओ, in BCC how many atoms will be there? Now what is the position of atom in BCC? Atom या 2 होंगे इन BCC कॉर्नर्स पे प्लस बॉडी सेंटर पे। अब जो कॉर्नर्स पे हैं उनका कंट्रीब्यूशन 1 है। Now the one present in the body center it will not be shared by any unit cell. ये इस यूनिट सेल का खुद का है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर में है, किसी और यूनिट सेल से शेयरिंग में नहीं जाएगा, तो ये पूरे का पूरा इस यूनिट सेल का ही है। तो टोटल एटम्स BCC में कितने हैं? 2 हैं एक यूनिट सेल में। पिक देखते हैं। देखो ये BCC है। नाउ यू कैन इमेजिन क्लियरली, ये तो बड़ी वाली डायग्राम हो गई, फर्स्ट वाली, ठीक है। अब ये वाले देखो, बी वाला, एक्चुअल सिचुएशन इज दिस, कोई लाइंस प्रेजेंट नहीं होते। अब इसमें कंट्रीब्यूशन दिखाया सी में, सेंटर वाला किसी और यूनिट सेल से शेयर नहीं होगा। तुम इमेजिन कर सकते हो, आगे पीछे जैसे मर्जी करके देख लो। तो सेंटर वाला इसका खुद का ही है पूरे का पूरा। तो याद रखना है, सिंपल में इफेक्टिव नंबर 1 है, एफसीसी में इफेक्टिव एटम्स 4 हैं, बीसीसी में इफेक्टिव एटम्स 2 हैं। ऐसे आप किसी में भी फाइंड कर सकते हो, बाकी आपके सिलेबस में सिर्फ ये 3 ही है। जैसे मान लो ईसीसी आ गया, ईसीसी में बताना जरा कितना होगा। आई हैव डिस्कस विद यू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन ईसीसी। नाउ जस्ट रिप्लाई मी। ईसीसी मान लो मैं ईसीसी का यूनिट सेल तुमको दे दूं, तो उसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आएगा? ड्यू टू कॉर्नर्स देयर इज 1 एटम, 2 आएगा। उसमें भी कोई भी 2 अपोजिट फेज में ले लो, हाफ इंटू 2,
तरुण बेटा समझ में आ रहा है? इसी का समझ में आ गया? किसी का भी आप कर सकते हो ऐसे। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉर्नर पे जो एटम होगा उसकी कंट्रीब्यूशन 1/8 है। किसी भी फेस सेंटर पे एटम होगा उसकी कंट्रीब्यूशन हाफ है। बॉडी सेंटर में मान लो एटम होगा, मैं जस्ट पोजीशन की बात कर रही हूँ, बॉडी सेंटर में होगा उसकी पूरी की पूरी कंट्रीब्यूशन उसकी अपनी है। कई बार क्वेश्चन में ना एज सेंटर की बात आती है, वो बता देती हूँ मैं आपको। एज सेंटर, sometimes it is given that particle is present in the at the edge center, like कोई भी यूनिट सेल है, कोई और जगह पे भी हो सकता है, मान लो एज सेंटर पे ये पार्टिकल। एज सेंटर समझते हो? एज मतलब किनारा। तो सोच के बताओ, चैट में रिप्लाई करना कि एज सेंटर में एटम होगा तो वो कितने यूनिट सेल उस एटम को शेयर करेंगे। इमेजिन यूनिट सेल पड़ा है आपके पास, उसके एज पे एक एटम है, उस एटम को कितने यूनिट सेल्स शेयर कर सकते हैं? या ये उसका खुद का होगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, कितने करेंगे? यादविंदर ने ठीक रिप्लाई किया। तरुण बेटा कैन यू इमेजिन? 3 और करेंगे, हाँ, तो टोटल 4 हो गए। साथ वाला, इसके ऊपर वाला और साथ वाले के ऊपर वाला, तो एक में इसकी कंट्रीब्यूशन 1/4 आएगी। तो if it is given in the numerical, sometimes it is written like a particle is present at the edge center, and in the numerical you need to find out its contribution, then contribution will be 1/4. Okay, now we can do some practice questions. So let's write down first question. तो मैं आपको बेटा इसके नोट्स भेजूंगी, तो अभी अपना रफ पे कर लो, बाद में अपने फेयर नोट्स बना लेना। Write down the question. A compound formed by elements A and B has a cubic structure. सॉलिड स्टेट में सारा खेल थोड़ा आपको मतलब अपना माइंड ओपन करके इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। A compound formed by elements A and B has a cubic structure in which A atoms are at the corners of the cube and B atoms are at the face center. Derive the formula of the compound. Derive the formula of the compound. Let's see how we can solve such type of question. Question में दिया है, we have a compound which is formed by 2 element A and B, has a cubic structure. कोई 2 एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे मान लो कि जिंक क्लोराइड है, मैं वैसे एग्जांपल बता रही हूँ। तो 2 एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट जिंक है, दूसरा एलिमेंट क्लोरीन है, ऐसे बात कर रहे हैं। H2O है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, एंड इट इज गिवन दैट स्ट्रक्चर इज क्यूबिक। ओके ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूबिक बताने का मतलब है डायमेंशन के बारे में बताया हुआ है। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन विच A एटम्स आर एट द कॉर्नर्स। ठीक है, तो A के एटम्स वो बोलता है, A एलिमेंट जो है उसके एटम कॉर्नर्स पे हैं। ओके, एंड B एटम, लेट अस शो B विद सम अदर कलर। B atoms are at the face center. Suppose these are the B atoms. ठीक है ना, हमको फॉर्मूला निकालना है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब आपको पता है जो मैंने रेड से दिखाए हैं वो A के हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ A क्या करोगे बेटा, 1/8 इंटू 8 लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि A वाले सिर्फ रेड वाले हैं और कॉर्नर की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है, और कितने कॉर्नर्स पे हैं? 8 पे हैं, तो A का नंबर एक यूनिट सेल में 1 हो गया। सिमिलरली B का नंबर कितना आएगा, हाफ इंटू 6 3, तो A 1 है,
B3 है, तो फॉर्मूला क्या हो गया AB3। ये वैलेंसी नहीं लिखी मैंने, ध्यान देना, ये नंबर है, ठीक है। और कहीं आप क्रॉस करने बैठ जाओ, A1 है B3 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा AB3। बताओ मुझे समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे निकाला है मैंने। इन 1 यूनिट सेल यस मैम। A1 है B3 है, तो फॉर्मूला विल बी AB3। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं, ठीक है। तो मैं रब कर रही हूँ, आपको नोट नहीं हो वैसे तो कर लिया होगा, देन आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, उससे आप दोबारा देख के कर लेना। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड लिखो, इफ 3 एलिमेंट्स P, Q and R crystallizes in a cubic lattice. Now we have 3 elements. 3 elements वाले compounds भी तो होते हैं, like you have calcium carbonate, element calcium, carbon and oxygen, ठीक है। If 3 element P, Q and R crystallizes in cubic lattice with P atoms at corners, Q atoms at cube center and R atoms at center of each face। अच्छा, ये फेस के स्पेलिंग ठीक रखने हैं, ये वाला मत डाल देना फेस। ये क्या होता है, ये सॉलिड लिक्विड गैस में लिखते हैं, तो फेस जो आपकी क्यूब की साइड होती है वो। एंड वी हैव टू ड्राइव द फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। स्टार्टिंग में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, बाद में ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना ड्रॉ किए बता सकते हो तुम लोग, मुझे रिप्लाई आया एक, या तरुण ने बिल्कुल ठीक दिया बेटा, इट विल बी PQR3। तो P को हम मान लो, P कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे, तो ये मैं P दिखा रही हूँ ब्लैक से। What will be contribution of P? 1/8 into 8, P will be 1। Now turn off Q, let us show Q with blue। Q is cube center, means body center, it will not be shared by anyone, so contribution will be 1। Now R is present at the face center, let us show R with the green, this is a R, it will be 1/2 into 6, 3, so formula will be PQR3, simple। Let's practice one more। मैम इसको पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है? बेटर होगा कि आप क्यूब बना के दिखा दो, दैट विल बी बेटर, और उसके बाद बस कंट्रीब्यूशन लिख दो। इट इज P इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, so contribution will be 1/8 into 8। Q is present at the body center, so contribution will be 1, and similarly R का, ठीक। ओके मैम। एक और करके बताओ जरा। An ionic compound made up of atoms A and B has FCC cubic arrangement in which A are at the corners and atoms B are at face centers
आगे बोल रहा है इफ एटम ए is missing from one of the corners, then what will be the then what will be the simplest formula of the compound? This is our question. Now, so we have ionic compound, ठीक है, उसमें A and B प्रेजेंट है, FCC क्यूबिक स्ट्रक्चर है. नहीं तरुण, तुमने जल्दी कर दी. देखो ए कॉर्नर्स पे है, ठीक है, बट उसने एंड में लिखा है इफ ए इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर. ए कॉर्नर्स पे है बट किसी एक कॉर्नर पे ए नहीं है. तो जैसे मान लो देख रहे हो कि मैंने ये वाला कॉर्नर पे ए नहीं शो किया क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है कि ए किसी एक कॉर्नर पे नहीं है. कोई भी एक कॉर्नर तुम कर सकते हो, तो उससे क्या कंट्रीब्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो ए का नंबर कैसे निकालोगे? 1/8 इंटू 8 नहीं करोगे, इस बार 7 करोगे क्योंकि सिर्फ 7 कॉर्नर्स पे ही एटम्स हैं. समझ में आई तरुण? मैम फिर ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा. नहीं आता, मैं अभी बताती हूँ. बी फेस सेंटर में है, बी सारे फेस सेंटर पे, कुछ नहीं मेंशन किया, इट मीन्स ऑल पे है. सो इट विल बी 1/2 इंटू 6 3. अब हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लो पहले, 7/8 है, अब ये 3 है. अब होल नंबर के लिए दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से कर दो, इसको भी 8 से, तो क्या बनेगा? A7 B24. नहीं आया फॉर्मूला क्या? आंसर इज A7 B24. समझ में आई बात? ओके मैम. 7/8 और 3 है ना, तो रेशो ही निकालनी होती है हमको, तो उस दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा बात. तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला A7 B24 है. कुछ नहीं लिखा हुआ तो सारी पोजीशंस पे रखना, बट उसने क्लियर कट मेंशन किया था कि इट इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स. एनी डाउट्स? यादविंदर समझ में आया बेटा? आगे मैं ओके. सो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं. अब हम आगे चलते हैं टॉपिक में. Now we are going to study relationship between edge length A and radius R of atom. ऑफ एटम काट दो, स्ट्रक्चर में करना है हमने, बस इतनी हेडिंग लिखो. अब देखते हैं कि हमने क्या स्टडी करनी है. रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल लिख सकते हो एंड रेडियस आर ऑफ एटम. अब ये पूरी लाइन बन गई. अब इसका मतलब क्या है? सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल यूनिट सेल. सिंपल यूनिट सेल में अगेन वो चीज़ माइंड में रखनी है कि हम शो करते हैं बट एक्चुअल में कोई भी लाइंस प्रेजेंट नहीं है. तो आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर में ना ये पता होना चाहिए कि कौन से टच कर रहे हैं, कौन से नहीं टच कर रहे हैं. बट ये 4 मिनट्स बाद फिनिश हो जाएगा, ठीक है? तो मैं आज हम ज़्यादा लोग हैं तो ये फिनिश हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी मीटिंग. आई विल स्टार्ट अगेन विद द सेम आईडी, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो मैं आपको क्या बात बता रही हूँ कि आपको अभी मैंने ये दिखाया था सिंपल वाला, ठीक है?
कुछ ऐसा तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो? ऐसा होता है ये, मैं सिर्फ ये ऊपर वाला बनाऊं तो सिमिलरली ऐसा, ठीक है। मतलब ये जो यूनिट सेल है इसकी ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है इसकी, इसको हमने ए सपोज कर लिया। और क्या मैं ए को 2r नहीं लिख सकती? यहाँ से देख के तो लगेगा कि मैम नहीं लिख सकते, बट एक्चुअल में तुमको पता है कि ये टच करते हैं साइड में जो एटम होते हैं, सिंपल में, सिंपल की बात कर रही हूँ अभी मैं, वो टच करते हैं। दोबारा हम देख सकते हैं इसका, ये तो तुम्हारा आ गया सिंपल वाला, ये रहा। ये देखो जरा, तुमको दिख रहा है कॉर्नर वाले टच कर रहे हैं। इसमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन से टच करते हैं। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए जो एज लेंथ है सिंपल यूनिट सेल में वो 2r के इक्वल होती है, जबकि r का हमने क्या मानना है, हमने रेडियस ऑफ एटम मान के रखा है r, और a हमने क्या मानना है, एज लेंथ को हमने a मानना है यूनिट सेल की। बताओ बेटा, इज इट क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस? तरुण क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताओ। आ गया, आ ओके। गया मैम। तूने नो मैम लिखा हुआ है चैट में, पता नहीं। वो डाउट्स के लिए आपने पूछा था ना कि कोई डाउट है। अच्छा ओके ओके ठीक है, चलो। तो अब सेकंड चलते हैं, बीसीसी। चलो पहले एफसीसी कर लो, वो इजी रहेगा समझना। सेकंड इज एफसीसी। Now FCC में पोजीशन इज एट द कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब बेटा एफसीसी में कौन टच करते हैं, ध्यान देना। एफसीसी में कॉर्नर्स वाले टच नहीं करते होते, तो कौन करते हैं टच, देखते हैं। मैं ये ऊपर वाला फेस बना रही हूँ, ऊपर वाला फेस जो है मैं वो अलग से बनाऊंगी, देखना तुम लोग। थोड़ा बड़ा हो गया, 1 मिनट। इसमें बेटा ये जो ये टच करेंगे, तुमको शायद दिख रहा हो, ठीक है। फेस डायगोनल एक चीज होती है, क्या होती है, फेस डायगोनल, फेस का डायगोनल। ये देखो ये फेस के डायगोनल्स हैं, जैसे ये इस फेस का डायगोनल है, ये इस फेस का डायगोनल है। जो फेस डायगोनल पे है ना वो टच करते हैं। तुम देखो कॉर्नर वाले में मैंने थोड़ी स्पेस छोड़ी है, बट फेस डायगोनल में 3 एटम्स हैं, एक ये कॉर्नर का, एक ये बीच वाला फेस के सेंटर वाला, एक ये कॉर्नर का। सिमिलरली इधर देखना चाहते हो तो ये कॉर्नर वाला, ये वाला, ये भी फेस डायगोनल है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे तुम कोई भी फेस इमेजिन कर सकते हो, चाहे ये वाला फेस इमेजिन कर लो, तो उसमें कौन टच करेंगे, उसमें ये वाला और ये वाला टच करेंगे, या ये वाला, दिस वन, दिस वन। डायग्राम भी एक बार और क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखो दिख रहा है तुमको, ये वाला डायग्राम पे ध्यान दो, दिस वन, इसमें देखो दिस दिस और ये टच कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो वो निकालने के लिए हमें पहले फेस डायगोनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब मैं क्या करती हूँ, ये पॉइंट को ए रख लो, इस पॉइंट को बी रख लो, इसको सी रख लो। अच्छा मुझे ये बताओ, कैन आई राइट ए बी इज इक्वल टू 4r? प्लीज टेल मी। ए बी वाले ये टच कर रहे हैं, तो ए बी जो भी आएगी वो ये एक आर, इसमें इसके 2r और इसका 1r। यस मैम। दोबारा मैं बड़ा बना देती हूँ, ये देखो ये इसका आर आ रहा है, इसके 2r आ रहे हैं क्योंकि ये पूरा आ रहा है, और इसका आर आ रहा है। So for FCC, how we can find the relationship between A and R? We have understood that face diagonal, हर एक फेस पे ऐसे तुम लोग कर सकते हो, एंड दे आर इक्वल इन साइजेस। फेस डायगोनल
will be equal to 4r. To make it easy, we will make one face only, like this. So put this point as A, this point as B, and this is C. So this will be your right angle triangle. And AB square will be equal to AC square plus BC square. AB will be equal to AC square plus BC square under root. Now AC and BC, they are equal to edge length only. यही है ना बेटा, ये तुम्हारा A है, ये B है, ये C है, तो ये एज लेंथ ही है ना, तो मैं पुट कर सकती हूँ ए सी ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 2a स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई तुम्हारी a√2। तो एक चीज़ तो वैसे ही तुम्हारा कंक्लूजन निकल के आ गया, इसकी भी तुमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। फेस डायगोनल इज ऑलवेज इक्वल टू a√2। Now what is any phase diagonal? If you find phase diagonal of any phase, it will be equal to a√2. Now we know that AB is equal to 4R. We have concluded R, 2R, R. It means 4R is equal to a√2. So this is the relationship. So R will be equal to, so I can write R will be equal to a 2√2। कर लोगे ना आगे, 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू √2, एक √2 कट गया, तो R विल बी इक्वल टू, सो ये नेट कंक्लूजन निकल के आया, R इज इक्वल टू a/2√2। को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझ के चलो तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ रिलेशनशिप फॉर एफसीसी। दिस रिलेशनशिप विल बी यूज्ड फर्दर इन न्यूमेरिकल्स। नाउ फॉर बीसीसी, तो याद रखना बेटा, सिंपल में कौन से टच करते हैं, सिंपल में कॉर्नर्स वाले टच करते होते हैं, बट इन एफसीसी में कौन से एटम टच करते हैं, कॉर्नर्स वाले नहीं टच करते, फेस डायगोनल वाले टच करते हैं। नाउ बीसीसी, नाउ व्हाट इज द सिचुएशन इन बीसीसी, जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन कौन से एटम जो हैं वो टच करते हैं। बीसीसी में बेटा जो बॉडी डायगोनल होता है, कैन यू इमेजिन बॉडी डायगोनल, एक कॉर्नर से ये पीछे वाले कॉर्नर की तरफ मान लो एक थ्रेड जा रहा है, जैसे चौक का बॉक्स होता है ना, उसे इमेजिन करो, एक कॉर्नर से पकड़ा और उससे जो पीछे कॉर्नर है बिल्कुल उनके बीच में जो एक लाइन सी पास होगी, वो बॉडी डायगोनल है। तो वो वाले एटम जो हैं वो टच करेंगे। कैसे, 1 मिनट, इसमें तुम्हारा ये देखो, एक देखना, अब ये इसने थोड़ा शो करने की ट्राई की है। दिस इज अ बॉडी डायगोनल, ये वाला जो पास हो रहा है दिख रहा होगा ना तुमको, ये लाइन जो जा रही है, ये इसने 2 बॉडी डायगोनल दिखाए हैं, ऐसे ही और भी बन जाएंगे, ये इससे तुम यहाँ तक भी जा सकते हो। ठीक है, तो सारे बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल होगा, वो हम फाइंड कर सकते हैं, और वो टच करते हैं। देखो ये वाला कॉर्नर वाला, ये वाला और ये वाला टच करते हैं, ये और ये कॉर्नर वाला दिख रहे हैं बट ये टच नहीं करते, इसने ऐसे बना दिया थोड़ा सा। तुम देखो इसमें स्पेस दिखाया हुआ है बीच में, ये स्पेस बचा रहता है इनमें। आई बात समझ में? तो हमको बॉडी डायगोनल की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ए बी और इसको सी। अब देखो ये इमेजिन हो रहा है तुमको बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इसके बीच में, ये राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये जो साइड है वो फेस डायगोनल है एक्चुअली। बोलो ये समझ आ रही है बेटा क्या बनाया मैंने? तो इसमें ए बी हाइपोटेन्यूज है, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट, और ए सी फेस डायगोनल है। हमने पीछे अभी फाइंड किया था कि कोई भी फेस डायगोनल a√2 के इक्वल है, तो ए सी स्क्वायर करना है, मतलब a√2 का स्क्वायर करना है, और बी सी क्या है, बी सी एच लेंथ है, ए स्क्वायर है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, सो इट विल बी 3a स्क्वायर अंडर रूट, सो ए बी वैल्यू विल बी a√3।
तो याद रखना एवरी बॉडी डायगोनल की वैल्यू हमेशा a√3 होती है और फेस डायगोनल की वैल्यू हमेशा a√2 होती है। ठीक है, इसको ऐसे रिजल्ट को भी याद रखा जा सकता है, वैसे फाइंड भी कर सकते हो। अच्छा, नाउ कैन आई राइट a√3 विल बी इक्वल टू 4r, इजंट इट? मैंने बताया कि ये टच में है, इसमें 4 आ रही है, r इसके 2r और इसका r, तो ये रिलेशनशिप आ गया, r विल बी इक्वल टू a√3/4, इजंट इट? आई बात समझ में? बताओ मुझे भी इसी की। इसमें बॉडी डायगोनल को यूज करके राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। जस्ट टेल मी, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस मैम। इसके आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट उससे पहले हम एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। बेटा क्लोज पैकिंग में हमने पढ़ना क्या है? तो पैकिंग किस चीज़ के, कोई तुम सॉलिड स्ट्रक्चर देख रहे हो, उसमें क्या है? उसमें पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने अभी बात की थी। पार्टिकल्स मतलब उसमें एटम्स हो सकते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उनकी क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है बेटा? अपने आप को ऐसे अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि जो मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाए और एम्प्टी स्पेस मिनिमम रहे। इस तरीके की पैकिंग को हम क्लोज पैकिंग बोलते हैं कि क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इज दैट इन विच मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड लीविंग बिहाइंड द मिनिमम स्पेसेस। क्लोज पैकिंग जो है, पहले हम वन डायमेंशन में देखते हैं कैसे हो सकती है। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। अब तुम पार्टिकल्स को, जैसे हार्ड स्फीयर्स होते हैं ना, छोटे छोटे मान लो बॉल्स हैं, ऐसे इमेजिन करो। देखो अब बोर्ड पे तो मैं ऐसे ही बना सकूंगी कि तुमको सर्कल दिखेंगे, बट ये सर्कल नहीं है, ये जैसे छोटी छोटी हार्ड बॉल्स हैं वो रखी हुई हैं, वो इमेजिन करो। हमने वन डायमेंशन बनाना है, मतलब आप सिर्फ एक डायमेंशन क्रिएट कर रहे हो, सिर्फ लेंथ बना रहे हो या सिर्फ हाइट बना रहे हो, सिर्फ ब्रेड्थ बना रहे हो, वन डायमेंशन है। तो वन डायमेंशन में सिर्फ ओनली वन अरेंजमेंट इज पॉसिबल, इसके बिना तो तुम कोई और अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तुम ऐसे कर दोगे एक ही बात है, तुम ऐसे कर दोगे एक ही बात है। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन करने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओनली वन मेथड है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ स्फीयर्स विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ पर्टिकुलर स्फीयर। जैसे मान लो ये स्फीयर की हमने बात कर ली, अब ये स्फीयर डायरेक्टली ये दो स्फीयर को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है, बट मैंने तुमको बोला था कि ये जो पैकिंग वगैरह ना, ये हम ऐसे चलते हैं कि लैटिस कभी ख़त्म नहीं होता, तो इसको दिखा चाहे हमने ऐसे दिया, बट ये आगे 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 चलता जा रहा है, तो ये इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। सो द पॉइंट इज कि क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन में होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 रहेगा। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि एक स्फीयर को डायरेक्टली कितने और स्फीयर टच कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्फीयर्स विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ पर्टिकुलर स्फीयर, दैट नंबर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। आई बात समझ में? इसकी भी तुम लोग देख सकते हो। इसकी ये रही, दिख रहा है अब? ये स्फीयर्स हैं, सर्कल्स नहीं है, ये बॉल्स के जैसे इमेजिन करो इसे। बस इसमें एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है कि वन डायमेंशन में देयर इज ओनली वन मेथड and coordination number will be 2. Now close packing in 2 dimension. Close packing in 2 dimension. 2 dimension का मतलब क्या है कि हमने मान लो लेंथ जनरेट कर ली है ना, अब लेंथ तो जनरेट कर ली, लेंथ के साथ साथ हम लोग ब्रेड्थ भी बनाना चाहते हैं, मतलब इधर को भी जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे नीचे और स्फीयर्स रखने शुरू कर देंगे। इमेजिन करो जैसे छोटे छोटे कंचे होते हैं ना, आपने उसकी लाइन लगाई
उसके ऊपर नीचे नहीं रखा हमने, उसके साथ में रखी है। ये ऊपर नीचे नहीं रख रहे। इमेजिन हो रहा है बेटा, जैसे एक टेबल पे मान लो अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया, एक लाइन लगाई, फिर उसके साथ दूसरी लगाई, फिर थर्ड फोर्थ, ऐसा। तो ये लेंथ थी तुम्हारी, अब तुम्हारी ब्रेड्थ भी बनने लग गई। इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशन में हम पैकिंग कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशन में पैकिंग करने के वी हैव 2 मेथड्स। एक तो मैंने तुमको बना के दिखा दिया, दिस मेथड इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। व्हाट इज द नेम? इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें यूनिट सेल तुम लोग देखो तो इसमें स्क्वायर बन रहा है। कैसे? ये देखो, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 4। यू कैन सी कि दिस स्फीयर इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद 4 स्फीयर। ये वाला स्फीयर इसको टच करता है, ये वाला डायरेक्टली जो टच कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये 4 स्फीयर इसको टच करते हैं। तो तुम 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करोगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग करोगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। समझ में आई इतनी बात? इसकी डायग्राम ये ए क्या लिखा हुआ है, जैसे इसने पहली जो रो थी, रो मतलब ये जो ये है, इसको इसने ए रो बोल दिया, तो ये दूसरी बिल्कुल उसके सिमिलर है, उसको बी बोल दिया, थर्ड भी सिमिलर है, तो इसको ए टाइप अरेंजमेंट बोल देते हैं। स्क्वायर बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। Now, what is the other method of close packing in 2 dimension? I have just told you that in 2 dimensions, we have 2 methods to do close packing. Second method is hexagonal close packing. Second is hexagonal close packing. As it is clear from the name, hexagon इसमें बनेगा। देखते हैं कैसे। देखो, फर्स्ट तो रो ऐसे ही बनाओगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं, उसको मान लो ये रख दिया। अब स्क्वायर में हमने बिल्कुल इसके यहाँ पे अरेंजमेंट किया था। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें ऐसे करेंगे। देखो, तुमको डिफरेंस इमेजिन हो रहा है? इसमें स्पेस जो है वो ज़्यादा भरेगी, या हम बोल सकते हैं कम खाली जगह रहेगी। तो बट ये जो बी, इसको मैंने बी क्यों रखा है? क्योंकि ये ए से डिफरेंट है। उसमें जैसे यहाँ पे 2 मैंने बॉल रख दी, उनके बीच में एक वो जगह सी होती है, उसमें फंसा दिया मैंने अगली रो का स्फीयर। फिर जो थर्ड बनानी है वो ए जैसी बनेगी। इमेजिन कर रहे हो तुमको बेटा? हो रहा है इमेजिन? तो उसको मैं ए बोल लूँगी। फोर्थ वाली फिर बी के जैसे बनेगी। तो इस अरेंजमेंट को हम ए बी अरेंजमेंट बोलते हैं। और इसमें तुम्हारा हेक्सागन बनता है, इसलिए इसे हम हेक्सागनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। Any sphere you can see it will be in direct contact with 6 sphere. This, and this. So this is more efficient. Hexagonal close packing जो होती है that is more efficient. More efficient बोलने का मतलब है कि उसमें एक्चुअल में इसमें तुम वैल्यू भी देखो तो इसमें 60.4% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। पैकिंग एफिशिएंसी समझती हो? ये हमने पढ़ना भी आगे। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि मान लो 100 स्पेस है, 100 में से 60.4 भरी हुई है, और स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एफिशिएंसी होती है 52.4%। मतलब 100 जगह इसको भी दे दी। इस तरीके से पैकिंग करोगे तो 52.4% फील होगा, इस तरीके से पैकिंग करोगे तो 60.4% स्पेस फील हो जाएगी। आ गई बात समझ में? इसकी पिक देख लो, ये देखो वही है जो हमने बनाया था, बस स्फीयर जैसे तुमको इमेजिन करना है। बट ये सर्कल्स नहीं है, बस इतनी बात है। तो पेपर में हम ऐसे दिखा पाएंगे। बट बोलो बेटा, कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आ गया तो यस लिख दो चैट में, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? नो मैम। चलो फिर मिलते हैं, मैं टाइम भेज दूंगी। ठीक है, चलो ओके बेटा, बाय बेटा।